Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 8 of the course Issues in Accounting Practices. And today's topic is the practical issues in cash and receivables. In the previous lecture, what we have studied is the practical issues related to balance sheets and statement of cash flows. What are these and how they these issues can be removed, and how the overall accounting standards addresses these issues that we have studied in the previous lecture. Now we are studying the issues related to cash and receivables and how the GAAP and IFRS address these issues. Well, these are our learning objectives, and as we are on our second part of our course outline, that is regarding corporate accounting concepts and issues. And today's our learning objective is identifying items considered in cash, how to report cash and related items. These are the issue. Defines receivables and identify different types of receivables. Explains accounting issues related to recognition of account receivables. Explaining accounting issues relating to the value of account receivable. Now, as you see that now we are having a very deeper thoughts or a very deeper concept of each and every item. हर चीज को हम बहुत डीप जाके देख रहे हैं कि ये किस तरह हो सकती है और ये इस अकाउंट रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करना है. एवरी बिट्स ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज नाउ बीइंग एलैबोरेटेड डीपली कि इनके डीप मैनर्स में क्या है, और वहीं पे इश्यूज लाई कर रहे होते हैं जिसे हम एड्रेस कर रहे होते हैं. समटाइम्स वी मेजर इट एज एन स्पेशल इश्यूज, समटाइम्स वी मेजर इट एज additional issues. So but these are all issues that are being facing by the corporate, that are being faced by the corporate organizations or corporations. So you can see that on cash and receivables, cash, what is cash, reporting of cash, summary of cash related items. Then we have an account receivables, recognition of account receivables, valuation of account receivables. Then we have notes receivables, recognition of note receivables, valuation of note receivables. Then we have certain issues, special issues related to these things. Fair value options, how to calculate the fair values, dispositions of accounts and notes receivables, presentation and analysis. These are the special issues that lies underneath these two concepts of cashes and receivables. These are the whole issues that are lying on it. Some of part of this topic being covered today, and some of the part of this topic will be covered in the next lecture. So what we are going to today is that we are going for the account receivables and all the related issues regarding account receivables. However, the note receivables and other special issues will be addressed in our next lecture, that is lecture number 9. First of all, what is cash? Most liquid assets, standard medium of exchange, basis of measuring and accounting all terms, current assets. Examples: coin, currency, available funds on deposit at bank, money order, certified checks, cashier's checks, personal checks, bank drafts, saving accounts. All these are the examples of cash. These are all known as cash, or you can say the medium of exchange. So these are all are included in cash. Cash equivalents, short-term, high liquid investment that are both readily convertible to cash and so near to their maturity that they present insignificant range risk of change in interest rate. जो easily convert हो सके cash के अंदर, and that they have the maturity so near that the risk is almost negligible. इतनी कम है इनकी लाइफ के उसमें रिस्क आप अज्यूम नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आज ली हुई चीज 30 दिन बाद इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होगा? इसमें मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व होगा. हाँ, लॉन्ग टर्म पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, इस तरह की सिक्योरिटीज पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज दे आर द ऑलरेडी सो नियर टू देयर मैच्योरिटी के वहां पे रिस्क आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या इजीली आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं तो बेशक, लेकिन वो वहां पे रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता होगा, और अ वेरी मिनिमम रिस्क एग्जिस्टेड देयर. एंड दीज आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश. मींस आप कभी भी जाएं मार्केट में उसे दें, आपको उतना ही कैश मिलेगा विद लीस्ट cost or least loss in the value. That means it has a high level of marketability. ये बहुत ज्यादा टर्म यूज होती है in accounting, that is known as marketability. और marketability के दौरान ही आप कहते हो कि that means that it can be sold out at a minimum loss.
Examples are treasury bills that have life of 3 months, 6 months or more 9 months, commercial papers that have more maximum life of 270 days, and money market funds. These are also of short term funds or short term instruments. Restricted cash, we have companies segregate restricted cash from regular cash. For example, restricted cash for plant expansion, रिटायरमेंट ऑफ लोन डेट्स और कंपनसेशन बैलेंस. जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, देयर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड कैश. हमने किसी को पेमेंट करनी है तो हम उसके लिए पहले से ही कैश को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? उसकी सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगे दैट कैन इजीली बी कन्वर्टेबल इन कैश एट द टाइम द पेमेंट वाज ड्यू. आपने किसी को बहुत बड़ी पेमेंट करनी है, हाईली इंटेंस यानी यू कैन से हाईली इंटेंसिव पेमेंट्स, या जब बहुत बड़ी पेमेंट करनी है, आप क्या करते हैं? उसके लिए कैश सेव करने के लिए आप तो सारी की सारी जितना भी कैश चाहिए होता है उसकी आप सिक्योरिटीज परचेज करके रख लेते हैं, और जैसे ही वो पेमेंट ड्यू होती है आप उस सिक्योरिटीज को बेचते हैं और पेमेंट कर देते हैं. दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड कैश. आप उसमें कैश को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस. दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड कैश. इंटरनेशनल थॉरोब्रेड ब्रीडर्स. Restricted cash, see note 3730. At the year end, the company has approximately $3,730,000 which has classified as restricted cash and investment. These funds are primarily cash received from horsemen for nomination and entry fees to be applied to the upcoming racing meets. Purse winning held in interest and horsemen, and amount held for unclaimed ticket holders winning. यानी ये इस पर्पस के लिए वहां पे रिस्ट्रिक्टेड कैश को मैनेज किया हुआ है. नाउ रिपोर्टिंग ऑफ कैश ऑल्सो इंक्लूड्स द बैंक ओवरड्राफ्ट. कंपनीज राइट अ चेक फॉर मोर देन अमाउंट इट हैज इन द कैश अकाउंट. मींस उसमें क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाता है. ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक से हम एक तरह से लोन ले लेते हैं. सपोज आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपीज है और आपने चेक जो है 150,000 का लिख दिया है, तो बैंक उसकी ट्रांजैक्शन रोकेगा नहीं बल्कि 50,000 ओवरड्राफ्ट में रख देगा. नाउ जब भी आप जाएंगे कैश वहां से निकलवाएंगे नहीं की कोशिश करेंगे तो आप कैश वहां पे जमा करवाएंगे तो सबसे पहले उसमें से 50,000 ओवरड्राफ्ट डिडक्ट होगा. ऑफसेट अगेंस्ट अदर कैश अकाउंट्स ओनली व्हेन अकाउंट्स आर विद द सेम बैंक. या अगर आपके पास कोई और अकाउंट इन द सेम बैंक है तो आप अपनी ये ट्रांजैक्शन, जैसे अभी मैंने 100 और 150,000 की बात की थी, तो 50,000 आप किसी और अकाउंट से ऑफसेट करा सकते हैं. समरी ऑफ द कैश रिलेटेड आइटम्स. कौन कौन से कैश रिलेटेड आइटम्स होते हैं और उनकी क्या क्लासिफिकेशन है और क्या उसके ऊपर बेसिक उसकी एक्सप्लेनेशन है. फर्स्ट, कैश वी ऑलरेडी नेट दैट इट इज क्लासिफाइड एज कैश. इफ अनरिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट एज कैश, इफ रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट्स एज अ करंट और नॉन करंट एसेट. अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो उसे या तो हम करंट एसेट्स में शो करेंगे या नॉन करंट एसेट्स में. मींस या तो हम उसके करंट एसेट्स या करंट इंस्ट्रूमेंट्स या करंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगे या नॉन करंट एसेट या सिक्योरिटीज परचेज करेंगे. नॉन करंट एसेट या सिक्योरिटीज कब परचेज करेंगे? व्हेन वी नो दैट द ट्रांजैक्शन विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 1 year और मोर देन 1 year और सो. petty cash and change funds. Cash that is also being classified reported as a petty cash रखी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. क्यों रखी जाती है? ताकि वो डेली टू डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सके. डेली एक्सपेंसेस में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, आपके और एक्सपेंसेस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल टी एक्सपेंसेस व्हाटसोएवर, जितने भी केटरिंग एक्सपेंसेस हैं, दीज आर आल्सो बीइंग कवर्ड बाय द पेटी कैश. शॉर्ट टर्म पेपर्स, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसीवेबल्स. टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट एंड रिसीवेबल्स आर आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म पेपर्स. यानी इन्हें किस में क्लासिफाई किया जाता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसीवेबल्स. ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या रिसीवेबल का पार्ट होते हैं. इन्वेस्टमेंट विद मैच्योरिटी ऑफ 3 to 12 months आर नोन एज शॉर्ट टर्म पेपर्स. यानी शॉर्ट टर्म पेपर्स में आते हैं. दिस इज नोन एज टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट. पोस्ट डेटेड चेक्स एंड IOUs, दैट इज ऑल्सो बीइंग रिसीवेबल्स. कैसे? आपने किसी से पेमेंट रिसीव करनी है,
उसने आपको चेक लिख के दिया 6 नवंबर का और आप इस टाइम जो डेट है वो 26 नवंबर है, दैट मींस दैट आर आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ रिसीवेबल, बिकॉज ये आपको रिसीव होने हैं, लेकिन कब होने, जब 6 नवंबर आएगी, बिकॉज चेक इज ऑफ पोस्ट डेटेड और एज्यूम्ड एज कलेक्टेबल्स, और कलेक्टेबल्स इसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज द ट्रेवल एडवांस, दैट इज आल्सो बीइंग रिसीवेबल, कि आपने कहीं पे किसी ट्रैवल किया आपके एम्प्लॉइज ने और वहां पे आपको जितना भी खर्चा हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बियर एंड दैट इज नोन एज ट्रैवलिंग एडवांस। और आपने अगर कहीं जाना है, आपको पहले से ही TADS दिए जा रहे हैं, दैट इज आल्सो बीइंग अ ट्रैवलिंग एडवांस, बल्कि द ट्रैवलिंग एडवांस दैट इज गिवन बिफोर द ट्रैवलिंग इज नोन एज द receivables, and which is covered after coming is known as your expense or accrued expense or expense payable. Postage on hand or as stamp और अब postage of order, यानी जितनी भी पोस्टिंग होती हैं लेटर्स के ऊपर होती हैं, TCS OCS जितना भी जा रहे हैं, these are the prepaid expenses, because हमने ऑलरेडी TCS को या OCS को जब भी होती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑलरेडी पे किए हुए होते हैं उन्हें एक्सपेंसेस, इन्हीं एक्सपेंसेस के साथ ही हर चीज वर्क कर रही होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हमने भी डिस्कस किया है, जैसे करंट लायबिलिटीज होती हैं, ये करंट लायबिलिटीज मींस इट्स नॉट मोर देन 1 ईयर, इट्स राइट टू ऑफसेट अगेंस्ट अदर अकाउंट्स और मे बी व्हेन दैट अकाउंटिंग इज बीइंग credited by the cash from your organization, that is also being covered from that credit. Compensating balance, that is also one of the part of it. Cash separately classified as deposit maintained as a compensated balance. जब आपने किसी बैंक से लोन लिया होता है तो आप उसके पास कुछ पैसे एज अ मार्जिन रख देते हैं उसके पास एज अ सपोर्ट फॉर दैट लोन, दैट इज नॉर्मली नोन एज मार्जिन इन द बैंक, और ये एक तरह से सिक्योरिटी के तौर पे काम करते हैं कि यस द फर्म हैज लिंक्स विद योर ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफाइड एज अ करंट और नॉन करंट इन अ बैलेंस शीट, डिस्क्लोज सेपरेटली इन द नोट्स डिटेल ऑफ अरेंजमेंट, मींस इट्स एन ऑल्सो बीन एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ये बैलेंस शीट में नहीं छोड़ता है बट इन द सेपरेट नोट्स इट्स एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। So next thing is the internal controls. There are certain internal controls are required when we talk about the cash. जब भी हम कैश की बात करते हैं तो कुछ internal controls लाई करते हैं उधर पे। Internal controls means encourage adherence to a company policies and procedure, कि क्या जो कैश अकाउंट फॉर हो रहा है वो क्या according to policies and procedure of a company है। Then promotes operational efficiencies, क्या वहां पे जो भी कैश पड़ा है वो operational efficiencies के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। Then minimize error and theft, that's the important thing for internal control, because cash also जहां भी कैश की बात आती है वहां पे फौरन ही थेफ्ट की बात आना शुरू हो जाती है। Then enhance the reliability and accuracy of accounting data, ये इंपॉर्टेंट काम है इंटरनल कंट्रोल का कि accuracy of data इंपॉर्टेंस है कि जितना कैश आपके पास बैंक में पड़ा है आपकी स्टेटमेंट्स भी उतना ही कैश शो करें, that what we known as accuracy. Internal control procedures, then there are two things for the internal control procedure, that is what we known as cash receipts and cash disbursements. When we talk about cash receipts, separate responsibility for receiving cash, recording cash transactions and reconciliation and cash balances. Match the amount of cash received with the amount of cash deposited, यानी कि हम हर जगह पे जितनी कैश रिसीव हुई है क्या उतनी ही हमारे पास डिपॉजिट में भी चली गई है, यानी हम लोग जितनी कैश रिसीविंग नोट कर रहे हैं अपनी बुक्स में क्या उतनी ही हमारे अकाउंट में पहुंच गई है। Close supervision of cash handling and cash recording activities, that's the important thing for the cash receipts. ये तो सिर्फ थी चीजें कैश रिसीट्स के लिए। Disbursement also has certain requirement, disbursement की भी requirement होती है। Cash disbursement means all disbursements except petty cash and made by check, यानी सारी डिस्बर्समेंट देखी जाती हैं एक्सेप्ट वो जो चेक से की जाए या पेटी कैश की। चेक से डिस्बर्समेंट जो भी की जाती है उनको नोट कौन कर रहा होता है, बैंक कर रहा होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कौन रख रहा होता है, बैंक रख रहा होता है। बट एनी अदर ट्रांजेक्शन विच इज नॉट मेड बाय चेक और एनी पेटी कैश, दैट इज बीइंग governed by the cash disbursement, and that is also a part of internal control. Separate responsibility for cash disbursement, documents, check authorization, check signing and record keeping, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं कि आपको पता हो कि आपने कितने चेक्स निकाले हैं, आपको पता हो कि कितने चेक्स मैंने कैंसिल किए हैं, आपको पता हो कितने चेक्स बाउंस हुए हैं, आपको पता हो कि कितने चेक्स अभी तक इशू हुए हैं लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं, आपको पता हो कि कितने चेक्स अभी भी रहते हैं कि जिन्होंने अभी कैश होना है, आपको ये भी पता हो कि मेरे पास कितने चेक्स आने थे जिनमें से अभी तक आए और नहीं आए।
That means you are talking about the disbursement. Checks should be signed only by the authorized individual, यानी चेक सिर्फ और सिर्फ authorized individual से साइन होने चाहिए, किसी और से साइन नहीं होने चाहिए. अगर किसी और से साइन हुए तो that means there is something जो उनके मैटर्स कुछ और हैं other than organization favors. Now there is a term compensating balance जो हमने भी ऑलरेडी भी स्टडी किया, हम दोबारा देखते हैं इसे डिटेल में. मिनिमम बैलेंस दैट मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ कंपनीज बैंक अकाउंट एज अ सपोर्ट ऑफ अ बोरोड फंड फॉर अ बैंक. कभी भी याद रखिएगा, चाहे बैंक से अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन करंट फाइनेंस ले, टर्म फाइनेंस ले, रनिंग फाइनेंस ले और एनी टाइप ऑफ लीजेस ले, इन सारे अकाउंट्स के लिए उसे कोई ना कोई श्योरिटी देनी पड़ती है. और श्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट देते हैं जिसमें एक सर्टेन लेवल का बैलेंस पड़ा रहता है, जिसे कहा जाता है कंपनसेशन बैलेंस का कंपनसेटिंग बैलेंस. और उसी कंपनसेटिंग बैलेंस को हम कहते हैं कि दैट इज द सपोर्ट टू योर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, यानी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है बोरोइंग ऑफ द बैंक के लिए. Then we have the account receivables. Receivables claims held against customer and other monies of goods and services. यानी जितने भी claims held against customer के against आपके जितने भी claims हैं, means to say आपने उन्हें services दे दी हैं, goods दे दी हैं, but उन्होंने अभी तक आपको कोई payment उसके against नहीं की. That means you are liable to claim money from these customers. So that are known as receivables. Some are based on oral promises, some are based on written promises. Oral promises of purchaser to pay a goods and services sold, यानी कि oral promises क्या है कि आपको दे दिया कि हाँ जी मैं पैसे बाद में दे दूंगा. What does that mean? That is an oral promise. And written promises क्या है कि आप बकायदा उससे contract sign करेंगे, pay the sum of money on the specified future date, कि आप उससे बकायदा contract sign करें. Oral promises ज्यादा चलते हैं when we are talking about SMEs या lower than SMEs. बट रिटन प्रोमिसेस ज्यादा चलती हैं जहां पे हायर या बिगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील्स हो रही हो या डील्स हो रही हो विद द बिगर ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे रिटन प्रोमिसेस के बगैर कोई चीज भी नहीं हो रही होती. हाउएवर विद द ओरल प्रोमिसेस दैट नॉर्मली रन्स विद द एसएमईज. Then we have account receivables in the case of oral promises and notes receivable in case of written promises. यानी account receivable in case of oral promises and notes receivable in the case of written promises. Account receivables then includes non-trade receivables, advances to officers and employees. ये किसको दिया हुआ है आपने? अकाउंट्स एम्प्लॉयज को दिया हुआ है. सो दैट मींस दीज आर नॉन ट्रेड रिसीवेबल. ये ट्रेडिंग के थ्रू रिसीवेबल जनरेट नहीं हुए बल्कि इंटरनल मैटर्स की वजह से रिसीवेबल जनरेट हुए. एडवांसेस टू सब्सिडरीज, वो भी आपको जो आपकी अपनी सब्सिडरीज है उनको एडवांस किए, दैट इज ऑल्सो बीइंग नॉन ट्रेडेबल. ये भी इंटरनल मैटर्स में आते हैं. देन डिपॉजिट टू कवर पोटेंशियल चेंजेस और लॉसेस, के जो हमने डिपॉजिट्स किए हुए हैं टू कवर पोटेंशियल चेंजेस और लॉसेस, जो पोटेंशियल लॉसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको कवर करने के लिए जो डिपॉजिट्स दिए हुए, दैट आर आल्सो बीइंग नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स. डिपॉजिट्स एज अ गारंटी ऑफ अ परफॉर्मेंस और पेमेंट्स. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ले सकते हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में या सुई गैस के बिल बहुत बड़े आने के चांस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत बड़े चांसेस होते हैं आने के, तो वहां पे इन्हें एज अ गारंटी कुछ मनी सुई सौदरन या वापडा के पास जमा कराने पड़ते हैं. सो दैट मींस कि वहां पे आपको डिपॉजिट ये शो करने पड़ते हैं एज अ रिसीवेबल्स कि हाँ जी ऑलरेडी हमने वहां पे एक चीज शो की हुई है, यानी डिपॉजिट कराया हुआ है एज अ गारंटी कि नहीं, हम जितना भी बिल आए, चाहे लाख आए, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, हम ये जरूर पे करेंगे. Dividends and interest payable receivables are also non-trade receivables. Claims against insurance company for casualties sustained, यानी casualty sustained की वजह से defendant under units, governmental bodies for tax refunds, common carriers for damaged or lost goods, creditors for returned damaged or lost goods, customer for returnable items. These all things are non-tradable receivables. इन सारों को हम किस में इंक्लूड करते हैं? non-tradable receivables. चाहे वो लॉस हुआ है, सबसे बड़ी चीज में आती है इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम्स, वो सारे के सारे these are non-trade receivables कि जो भी हमने रिसीव करनी, either because of damage, because of threat, because of loss or anything, जिसकी वजह से भी आएगा वो हम सब क्या कहेंगे? These are the non-trade accounts receivables. Now you can see that account receivable notes trade less accounts for doubtful accounts. तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? Molson Coors Brewing Company, तो ये that 758,526. Current notes receivables and other receivable less allowance for doubtful accounts, that includes to the 112,626. So these are the account receivables and notes receivables.
Again, you can see down the seaboard corporations, receivables, trade due to foreign affiliates, others. These all are added 367,373. Allowance for doubtful accounts, that are 8,060. That is now net receivables are 359,313. नाउ रिकग्निशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, ट्रेड डिस्काउंट्स भी कोई चीज होती हैं जो नॉर्मली दी जाती हैं. ट्रेड डिस्काउंट्स आर नॉर्मली फॉर द एफिशिएंसी इन पेमेंट ऑफ रिसीवेबल्स. रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड. अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं होती. कस्टमर्स आर बिल्ड नेट ऑफ डिस्काउंट. कस्टमर को कैसा बिल दिया था? डिस्काउंट करने के बाद, तो दैट इज नोन एज नेट ऑफ डिस्काउंट. देन देयर इज ऑल्सो अ कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है? जब हम बात करते हैं कि हमने सपोज 10 यूनिट्स पे किए, उसे प्रोवाइड करने थे, तो हमने 10 यूनिट प्रोवाइड की, लेकिन 10 यूनिट की उसने पेमेंट जो है फौरन कर दी. हम कहेंगे ओके ठीक है, 10 की पेमेंट ना करना, 8 की पेमेंट कर देना. तो दैट मींस वी हैव अ ट्रेड डिस्काउंट. या आप कहते हो कि यार ये मेरा बड़ा लायबल कस्टमर है, नाउ 10 की जगह मैं इसे 12 यूनिट्स प्रोवाइड करूंगा ताकि हमारा रिलेशनशिप कांस्टेंट रहे. दैट मींस इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट. या 10% डिस्काउंट, लाइक हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा था, दैट स्लाइड रिलेटेड टू अ 10% डिस्काउंट. एज यू कैन सी दैट it's a 10% discount for new retail store customers. 10% कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? For new retail store customers के लिए. For the cash discount, inducements for prominent payments is payment term 2, 10 and 20. Means to say there would be a 2% discount if the payment is done within 10 days. Otherwise there would be a normal payment within the 30 days. यानी अगर 30 दिन में पेमेंट हुई तो नॉर्मल जितनी पेमेंट बनती है उतनी की जाएगी, लेकिन अगर पहले 10 दिन के अंदर दी तो उस पेमेंट के ऊपर 2% डिस्काउंट दिया जाएगा. दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट. इंड्यूसमेंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी जल्दी पेमेंट के लिए हम उसे इंड्यूस करते हैं ताकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ ना जाए. ग्रॉस मेथड वर्सेस नेट मेथड, यानी मेथड यहाँ पे दो तरह के होते हैं. एक कहलाता है ग्रॉस मेथड और दूसरा कहलाता है नेट मेथड, ताकि हम कैश डिस्काउंट को अकाउंट फॉर कर सके. ग्रॉस मेथड एंड नेट मेथड के बीच में डिफरेंस देखते हैं. सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द इनवॉइस अमाउंट, यानी सेल्स कितनी रिकॉर्ड की जाती है? एट द इनवॉइस अमाउंट. सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द इनवॉइस अमाउंट लेस डिस्काउंट, यानी सेल्स कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं? जितनी भी इनवॉइस अमाउंट थी उसमें से लेस कर देते हैं डिस्काउंट को, जबकि ये चीज ग्रॉस में नहीं होती. सेल्स डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड एज रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द डिस्काउंट पीरियड. कैसे किया जाता है? एज अ रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू अकाउंट फॉर किया जाता है. इफ जैसे भी 2 10 की बात की थी, तो 10 डेज के अंदर हमें पेमेंट रिसीव हो गई तो हम इसे कहेंगे दैट इज अ रिडक्शन ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू. सेल्स डिस्काउंट forfeit are recorded are interest revenue if payment are received after the discount period. यानी sales discount are recorded as a interest revenue. से कैसे ये रिकॉर्ड किया जाता है? interest revenue, यानी ये हमें additional revenue मिला है because वो अपनी पेमेंट within 10 days करने से कासिर रहा है. So that means it's a part of interest revenue कि हमने ये additional उससे receive किया है. So there is a difference between sales discount of cash discount. You can easily compare it how these works. Sale of $10,000 term 2, 10 and 20. Account receivables कितना आएगा जी? 10,000. Sales कितनी हुई? 10,000. Now net method में क्या होगा? वो कहता है उतना डालो उतना अकाउंट कह रहा हूँ रेवेन्यू में उतना ही डालें जितना आपको डिस्काउंट के बाद रिसीव हुआ है. मींस नेट ऑफ डिस्काउंट. अब ये देखें 10,000 में से हमने 2% माइनस कर दिया है और 2% माइनस करने के बाद आया 9,800 और वो हमने उसके हिसाब से एंट्री पास कर दी है. पेमेंट ऑन $4,000 ऑफ सेल्स रिसीव्ड विद इन डिस्काउंट पीरियड, यानी पेमेंट ऑफ सेल्स कितनी हुई है? 4,000 सिर्फ की है 10,000 में से विद इन डिस्काउंट पीरियड. तो कितनी आ गई यहाँ पे? कैश 3920, 80 रुपीज का जो है $80 का जो है यहाँ पे रिसीव हुआ है सेल्स डिस्काउंट. अकाउंट रिसीवेबल है 4,000 का. तो यानी टोटल हमें अकाउंट रिसीवेबल कितना वापस आया है विद इन पीरियड ऑफ 210, दैट इज ऑफ 4,000. और यहाँ पे कितना एंटर हो रहा है नेट ऑफ पीरियड में? यहाँ पे कोई क्या नाम है सेल्स डिस्काउंट नहीं शो हो रहा है. यहाँ पे डायरेक्ट एक ही अमाउंट शो हो रही है, दैट इज 3920 एंड 3920. पेमेंट ऑन 6,000 सेल्स आफ्टर डिस्काउंट पीरियड. ये 10 दिन में रिसीव नहीं हुआ, बल्कि कितने दिन में रिसीव हुआ है? ये आफ्टर 10 डेज. तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगी. कैश 6,000, अकाउंट रिसीवेबल 6,000, बट दैट इज चेंज इन अ नेट पीरियड. अकाउंट रिसीवेबल्स 120, सेल्स डिस्काउंट forfeited 12 क्या नाम है 120,
कैश 6000 एंड अकाउंट रिसीवेबल 6000, यानी अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास एडिशनल कितने हो गए 120,000 और टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स हमें कितने मिले 6000 मिले, यानी हमने उसे पहली अकाउंट रिसीवेबल में बना दिया सेपरेटली एज अ रिसीवेबल ओवरऑल rate या receivable cash discount and sales discount means sales forfeited, यानी sales इतनी अमाउंट से 120 से रिड्यूस हो जाएंगी, बल्कि सेल्स वन मोर थिंग, बल्कि सेल्स जो हैं वो 120 से इंक्रीज कर जाएंगी बिकॉज इट नॉट बीइंग डिक्रीज, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 120 के हिसाब से ये इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज ये हमें वरना कैश डिस्काउंट देना पड़ता अगर ये विद इन ड्यू डेट आ रहा होता, बट इट्स आफ्टर द पीरियड, दैट मींस इट इज आर एडिशनल सेल्स, दैट इज द सेल्स डिस्काउंट फॉरफिटेड. Now there are also one other term that is known as sales revenue. Merchandise may be returned by a customer to a supplier. जाहिर बात है कोई चीज खराब निकली है वापस कर जाएगा. To avoid misstating the financial statement, sale revenue and account receivable should be reduced by the amount of return in a period of sale if the amount of return is anticipated to be material. यानी कि जितना भी हमारे पास सेल्स रिटर्न आया उसको एडजस्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स एंड सेल रेवेन्यू इफ द अमाउंट ऑफ रिटर्न इज एंटिसिपेटेड टू बी मटेरियल, यानी ये वो इंफॉर्मेशन है जो मटेरियल हो, यानी जिस है उसके पास इतनी वैल्यू हो या उसके इतना ज्यादा वैल्यू हो कि वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, दैट इज अगेंस्ट द मटेरियलिटी. The special price reduction called an allowance and may be given as an incentive to keep the merchandise. यानी अगर आपके पास सपोज खराब निकल आई है मर्चेंडाइज के पास तो आप उसे कहेंगे यार ये चलो डिस्काउंट पे मुझसे ले जाओ. आप जब उसे ये चीज डिस्काउंट पे देंगे तो इसका मतलब है यू आर गिविंग देम अलाउंस ताकि वो हमारी कीप कर ले मर्चेंडाइज जो हमारी खराब हो गई है, क्योंकि हमारे पास आके वो वेस्ट हो जाएगी. तो इसीलिए वहां पे एक अलाउंस दिया जाता है कि कोई नहीं आप इसे डिस्काउंट पे रखें अपने पास, ये मर्चेंडाइज भी अपने पास ही रखें ताकि आप इसे अपने पास रखें और वी आर गोइंग टू चार्ज यू लोअर, हम उन्हें उसका कम चार्जेस आपको करेंगे. During the first year of operation, that is the example of sales return. Hodron sold $2 million of merchandise that had cost of $1,200,000. 60% of industry experience indicates 10% return rate. During the year, $130,000 were returned prior to customer payment. Record the returns at the end of years of adjustment. अब क्या हुआ है यहाँ पे 2 million की सोल्ड किए हैं and had the cost of 1200 million. 60% industry experience indicates that there's a 10% return rate. कितना है कि हमेशा 10% ऑलमोस्ट वापस आई थी और यहाँ पे वापस कितनी आई है $130,000 की सेल्स रिटर्न हुई है with before the customer payment. So what's the first thing is the actual returns निकालेंगे हम. कितना है सेल्स रिटर्न कितना आ रहा है 130,000 एंड अकाउंट रिसीवेबल भी उसी हिसाब से क्या होगा कम हो जाएगा बिकॉज पेमेंट से पहले हुआ है. इसका मतलब है हमने ये ऑलरेडी किस में पुट किया होगा अकाउंट्स रिसीवेबल में पुट किया होगा. इन्वेंट्री 78,000 थी, 78,000 से रिड्यूस हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री में आ जाएंगी तो दैट इज 78,000, 60% 78,000. नाउ यू कैन सी दैट ओवर टॉप यू कैन सी दैट द मर्चेंडाइज दैट हैड कॉस्ट देम $1,200,000 यानी 60% कॉस्ट की है. तो इन्वेंट्रीज यहाँ पे आई कितनी 60% ऑफ दैट थिंग. The only they have a merchandise of 1200, 60% of 1200. So 60% of 1200 आया. So that means inventory is of 78,000 and cost of goods sold 60% is of 78,000. Adjusting entries क्या पास होंगी sales returns, allowance for sales returns 70,000, inventory estimated returns, cost of goods sold 60%. That is the entries that is being passed in case of sales return. जब भी sales returns को हमने account for करना है तो हमने यही एंट्रीज पास करनी है और इन्हीं एंट्रीज को साथ रखते हुए ही हमने सेल्स रिटर्न्स को जस्टिफाई करना है. ठीक है, मींस सेल्स रिटर्न्स टू अकाउंट रिसीवेबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल रिटर्न्स को हमने डील करना है, देन एडजस्टमेंट्स करनी है कि जितनी भी सेल्स रिटर्न्स हुई हैं हमने उसको रिवर्ट बैक करना है और रिवर्ट बैक करेंगे तभी हमारे सामने चीजें क्लियर होती जाएंगी. वन मोर थिंग दैट व्हाट आई वांट टू इंक्लूड इन इट दैट inventories are 78,000, cost of goods sold is 78,000. मींस जो उसकी सोल्ड हुई थी वो कितनी की हुई थी 2 मिलियन की हुई थी, लेकिन जो उससे कॉस्ट पड़ी थी उनकी 1200,000 पड़ी थी. सेम केस वर्क विद द सेल्स रिटर्न.
130,000 है, दैट मींस इसकी कॉस्ट कितनी थी 60%, तो वी टॉक अबाउट अ 60%, दैट इंक्लूड्स द 78,000। और उससे क्या हुआ, हमारे पास लोगों ने कस्टमर चीजें वापस कर दी, तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिवर्स हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस क्या था, डेबिट था, अब उसका बैलेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सेम इज द केस विद द एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज भी इसी के अकॉर्डिंगली पास हो गई हैं। नाउ द रिकग्निशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स को रिकॉग्नाइज कैसे करना है और किस तरह रिकॉग्नाइज करके उसका टोटल ओवरऑल एंट्रीज पास करनी, लेट्स सी। ऑन June 3 Bolton company sold to Arquette company merchandise having a sale price of $2,000 within term of 210 and 60 FOB shipment point. On June 12 the company received a check of balance due from Arquette company. Prepare the journal entries on Bolton company's books to record the sale, assuming Bolton records sales using a gross method. Now what method they are using? Gross method. Now first one, on June 3 Bolton sold Arquette company of merchandising having sale price of $2,000 with terms. So account receivable 12, sales 2,000. On June 12, company received a check for balance due from Arquette company. Prepare journal entry of company's book to record the sales, assuming the sales on a gross method. Now first one is of gross method, कि हर चीज हमने किस पे लेके आनी है, gross method पे ही लेके आनी है। So that means 2,000 into 98%, क्योंकि 98% पे लेके आए, क्यों, उसकी ने अपनी टर्म को कंप्लीट किया है, मींस 100% के बजाय 2% का डिस्काउंट रिसीव किया है। तो 2,000 रिसीव करने थे, तो जब 2% का डिस्काउंट हुआ तो पीछे कितना बचा, 98%। तो 98% 1960। एंड देन अदर वन इज द सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट कितना मिला, 40 का। एंड द टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स वुड बी रिसीव्ड इज $2,000। That is the entry passed on a gross method, because gross में हम लोग अकाउंट जो डिस्काउंट होता है उसको भी शो करते हैं, जबकि नेट में हम डिस्काउंट को शो नहीं कर रहे होते, उसको एज अ रेवेन्यू फॉरफीटेड लेते हैं। नाउ अगेन नेट मेथड के साथ सेम एग्जांपल है। सेम एग्जांपल को किस हिसाब से हमने अब करना है, अकॉर्डिंग टू नेट मेथड, कि नेट मेथड में ये कहां पे लाई करती है। फर्स्ट वन देखें, अकाउंट रिसीवेबल्स 1960, सिंपल फर्स्ट एंट्री कितनी आ रही है 1960 की, पहले ही हमने डिस्काउंट सारा का सारा उसमें से निकाल लिया और सेल्स एंटर कर दी 1960। नाउ अब उसने क्या किया, रिसीव होगा तो क्या होगा, कैश 98,000 इतना आया, प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स मिले 1960 के। यहां पे भी उसने एंट्री कितने की है, 1960 की और 1960 की। यहां पे कोई नाम नहीं लिया उसने कैश डिस्काउंट का, बिकॉज कैश डिस्काउंट उनके हिसाब से क्या है, that is actually a forfeited service revenue if received, otherwise the value would be 1960. Now अब Arquette did not remit the payment up till July 29। टर्म तो गई, 2% का जो हमारे पास रिटर्न आना था, या जो 2% का जो हमारे पास कैश डिस्काउंट था वो तो गया, बिकॉज उसने पेमेंट कब तक नहीं की, जुलाई 29 तक नहीं की। सो द 2/10 वाली तो गई हमारे पास से परसेंटेज। सो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, नेट मेथड के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री June 3 को तो वही होगी 1960 अकाउंट रिसीवेबल्स सेल्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्री ऑन June 12, जब तक उसकी लिमिट खत्म हो गई तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, दैट वुड बी कैश 2,000, सर्विस रेवेन्यू अकाउंट रिसीवेबल्स forfeited, अकाउंट रिसीवेबल 1960 एंड सेल्स डिस्काउंट forfeited ऑफ 40। यानी ये हमें एडिशनल रेवेन्यू मिला है बिकॉज ऑफ नॉट अवेलिंग दैट कैश डिस्काउंट। दैट इज अ मेथड दैट इज यूज्ड इन द नेट कंडीशंस, कि जब भी हम लोग नेट कंडीशंस की बात करेंगे तो हमारे पास ये चीज रिसीव होगी। रिकग्निशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, नॉन रिकग्निशन ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट। कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट्स की नॉन रिकग्निशन के इश्यूज आते हैं। अ कंपनी शुड मेजर रिसीवेबल्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंट वैल्यू, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करने चाहिए। कंपनी इग्नोर इंटरेस्ट रेवेन्यू रिलेटेड टू अकाउंट रिसीवेबल्स बिकॉज फॉर करंट एसेट्स द अमाउंट ऑफ द
the discount is not usually material in relation to net income for the period. यानी कंपनी इग्नोर कर देती है नॉर्मली इंटरेस्ट रेवेन्यू को रिलेटेड टू अकाउंट रिसीवेबल्स बिकॉज फॉर करंट एसेट्स द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज नॉट यूजुअली मटीरियल, कि वो जो अमाउंट होती है वो मटीरियल नहीं होती या मटीरियलिटी नहीं होती उसके अंदर, यानी कि वो लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती, तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल है उसको वो निग्लेक्ट कर देती है. Recognition of account receivables. How are these accounts presented in balance sheet? Account receivables कितना था? Beginning 500, ending 500. Allowance for doubtful account is 2500 on the credit side and on the $25 on the right hand side. Now one side there's a 500 and other on the allowance for doubtful account is 25. Means to say the कितने परसेंट आपको चांसेस है अकाउंट रिसीवेबल रिसीव होंगे, दैट मींस 500 माइनस 25, दैट मींस 475 की चांसेस अकाउंट रिसीवेबल मिले बिकॉज 25 आर ऑलरेडी इन अ डाउटफुल अकाउंट्स. अकाउंट रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स 500 लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो भी मैंने पहले किया था दैट इज 475, इन्वेंट्री 812, प्रीपेड इज 40, टोटल करंट एसेट्स 1673, फिक्स्ड में क्या आ जाएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, फर्नीचर फिक्सचर आ रहे हैं, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस, तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट आ गया एंड दैट वी हैव अ टोटल एसेट्स. देन अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ 25 अलाउंस, वो ऑलरेडी उसने माइनस करके लिख दिया, वो कितना है 475, बाकी चीजें सेम रही हैं, गौर से देखें तो हर चीज उसी तरह है जिस तरह ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है. नाउ अकाउंट रिसीवेबल्स फॉर अ क्रेडिट सेल ऑफ $100. अकाउंट रिसीवेबल्स कैसे होंगे, क्रेडिट सेल हुई है कितने की, $100 की, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, सिंपल सा केस है, क्रेडिट पे सेल हुई अकाउंट रिसीवेबल्स टू सेल और वही एंट्री पास हुई है 100 की. अकाउंट रिसीवेबल्स किस साइड है, बिगनिंग साइड पे है, डाउटफुल अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट किस तरफ है, क्रेडिट साइड पे है, तो किस तरफ एंट्री होनी चाहिए इस 100 की, डेफिनेटली ऑन द लेफ्ट साइड. यहां पे आप एंट्री इसकी पास कर देंगे कि ये हमें 100 जो है ये हमारे पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल्स है. नाउ कलेक्टेड 333 ऑन अकाउंट, कितने रिसीव हुए हैं, 333 ऑन अकाउंट, तो कैश हमारे पास रिसीव हुआ, अकाउंट रिसीवेबल्स कितने से कम हो गए, 333 अमाउंट से, सो दैट मींस इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ये हमें रिसीव हो गए हैं. देन एडजस्टमेंट ऑफ $15 फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स, यानी हमारे पास क्या था, बैड डेट्स थे और एडजस्टमेंट आई है उसकी $15 फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स, यानी $15 की एडजस्टमेंट आई है बैड डेट्स के लिए. तो क्या एंट्री पास होगी, यहां पे हमारे पास ऑलरेडी पहले 25 थे हमारे पास, अब एडिशनल बैड डेट्स कितनी एडजस्टमेंट आ रही है, $15 की. उन्होंने अज्यूम किया है कि शायद हमें $15 और भी ना रिसीव हो सके, सो दैट इज नाउ द अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स, कि हमें डाउट है कि ये भी हमें मिल नहीं सकेंगे, बिकॉज वाई, कि यहां पे उन्होंने कहा कि यहां पे हमारे पास कुछ चीजों को हमने राइट ऑफ करना है कि शायद हमें इतनी अमाउंट ना मिल सके, so दे हैव रिटर्न ऑफ. जब इतने रिटर्न ऑफ हो गए तो ये कहीं और से कम भी तो होंगे ना, तो वो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे कम होंगे. राइट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स फॉर $10, कितना राइट ऑफ करना है, $10. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट. अब यहां पे क्या मतलब हुआ इसका, गौर से देखें, रिसीवेबल्स 10 मिल गए हैं, वो रिसीवेबल मिले हैं जिन्हें हमने सोचा था कि ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल कि हमें उसने दोबारा मिल सकेंगे या दोबारा उन्हें हम देखेंगे, वो चीज हमें रिसीव हो गई है. मींस टू से जो हमने 25 और 15 निकाले थे अलग अलग, उनमें से $10 हमें अनयूजुअल तौर पे, अनएक्सपेक्टेड तौर पे हमें मिल गए हैं, यानी हमने उसे क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया. बल्कि व्हाट वी कैन से इज द राइट ऑफ. राइट ऑफ मींस कि हमें व्हाट यू कैन से, इसे बड़े इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सिंपल सा केस ये है, क्लियर होके एग्जांपल सुनिएगा. आपने कहा जी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स जो थे वो राइट ऑफ कर दें. देखिए एक कंडीशन होती है, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल मिले, आपको शक हुआ कि ये मुझे मिलेंगे नहीं, तो आपने उसे डाउटफुल अकाउंट में डाल दिए. आपने जब उसे डाउटफुल अकाउंट में डाल दिए तो आपको आगे यकीन हुआ कि ये मुझे रिसीव नहीं होंगे, तो आपने उसे राइट ऑफ कर दिया. तो देयर आर 3 स्टेजेस, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एंड देन कि पक्का यकीन हो गया कि ये अब नहीं मिलेंगे. यहां पे वो बात कर रहा है कि उसे पक्का यकीन हो गया कि $10 उसको कभी नहीं वापस मिलेंगे, $10 उसे कभी भी वापस नहीं मिलेंगे. तो उसने क्या किया कि उसको अकाउंट रिसीवेबल में से भी निकाल दिया और
अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट से भी निकाल दिया कि नाउ दैट इज कंफर्म कि ये जो $10 है ये हमें रिसीव नहीं होने। सो दे हैव एडजस्टेड बोथ वन। देखें पहले जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल एंटर्ड थे अकाउंट में वो 500 थे, इट्स नॉट 475, मींस माइनस होके एंटर्ड नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में जस्ट एंटर्ड थे एज अ डाउट, बट यू कैन से शक के तौर पे थे। लेकिन जब यकीन हो गया तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट रिसीवेबल भी उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में $10 डेबिट साइड पे आया, अकाउंट रिसीवेबल में $10 क्रेडिट साइड पे आया। नाउ अकाउंट रिसीवेबल्स अब देखें कितने हो गए हमारे पास 227। जब हमने टोटल किए पहले कितने आ रहे थे 475, 333 हमें रिसीव हो गए, $10 हमने एडिशनल भी हो गए, तो पीछे हमारे पास कितने बचे, दैट इज 227। और सेम बाकी चीजें वही चीजें रही हैं जैसे हमारे पास ऑलरेडी थी। नाउ ऑन द स्लाइड ऑफ valuation of account receivables, uncollectible account receivable, as we have done in the previously what how these are being written off and how these are receivables are being managed. Now uncollectible account receivables, and uncollectible account receivables is the loss of revenue that requires through proper entry in accounts, कि वो लॉस को आप अकाउंट फॉर करें थ्रू प्रॉपर एंट्री ऑफ अकाउंट्स, यानी प्रॉपर एंट्री ऑफ अकाउंट जितनी भी हुई है आप उसी हिसाब से इस लॉस को प्रॉपरली अकाउंट फॉर करें, तो दैट इज नोन एज अनकलेक्टेबल अकाउंट। और डिक्रीज इन एसेट अकाउंट रिसीवेबल, ये किसको डिक्रीज करता है, एसेट अकाउंट को रिड्यूस कर होता है। लेकिन कब रिड्यूस करता है, जब आप राइट ऑफ कर देंगे। ये नहीं करना आपने कभी भी कि आप कहें जी डाउटफुल अकाउंट में है तो इसी के साथ साथ मैं रिसीवेबल भी रिड्यूस कर दूं, नो वे, कभी नहीं करना। ये राइट ऑफ करेंगे तब जब यकीन हो गया आपको, तो तब आप अकाउंट रिसीवेबल्स को भी क्रेडिट करेंगे उतनी अमाउंट से और डाउटफुल अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। दैट मींस बैड डेट्स हैज राइट रिटर्न ऑफ। अ रिलेटेड डिक्रीज इन इनकम एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, ऑब्वियसली जब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो कम हो गए हैं या हमारे पास रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी और लॉस किसका हो रहा है, रेवेन्यू का हो रहा है या इनकम का हो रहा है, एंड देन ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द शेयर होल्डर्स इक्विटी, बिकॉज एट द एंड इनकम ने कहां क्लोज होना है, शेयर होल्डर्स इक्विटी में जाके क्लोज होना है। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अकाउंट रिसीवेबल्स, दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट राइट ऑफ एक तो कर सकते हैं हम, या अलाउंस मेथड होता है। दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप डायरेक्ट रिटर्न ऑफ करते जा रहे हैं, और एक मेथड होता है अलाउंस मेथड। डायरेक्ट रिटर्न ऑफ में क्या होता है, थ्योरेटिकली deficient, no matching require, receivables not stated at cash realizable value, no not gap when material is amount, यानी कि ये जो है नॉट मैचिंग में होता है, थ्योरेटिकली ये डेफिशिएंट मेथड है। जबकि अलाउंस वाला क्या है, लॉसेज आर एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ सेल या परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स, गैप रिक्वायर्स व्हेन मटेरियल इज अमाउंट। यहां पे हम डाउटफुल अकाउंट्स को किसी मेथड के थ्रू डाउटफुल अकाउंट में डाल होते हैं। आपने भी पीछे देखा था कि $25 पड़े हुए थे डाउटफुल अकाउंट में, किस मेथड के थ्रू आई है, कैसे आए, किस तरह हमने इंक्लूड कर लिए, क्यों हो गए, तो दैट मीन्स कि वहां पे हमें चाहिए होता है कोई मेथड जिसके थ्रू हम ये लॉसेस को या डाउटफुल अकाउंट्स को एक सर्टन लेवल से मैयर करके डाउटफुल अकाउंट में डालते जाएं। डायरेक्ट राइट ऑफ जो है वो नॉर्मली मैचिंग नहीं चाहता, वो कहते हैं कि अगर आपको ये चीज रिसीव नहीं हो रही तो आप इसे डायरेक्टली राइट ऑफ कर दें। बट रिसीवेबल आर नॉट स्टेटेड एज कैश रियलाइजेबल वैल्यू, यानी रिसीवेबल्स कभी भी स्टेट उसमें नहीं कहते जो कैश रियलाइजेबल वैल्यू होती है। एंड ऑल्सो नो नॉट गैप व्हेन मटेरियल इन अमाउंट, यानी कि गैप में इसकी अलाउंस नहीं दिया जाता कि दैट यू वुड डू आर डायरेक्ट राइट ऑफ। Now, though two valuation account receivables method per, one is percentage of sale, another one is percentage of receivable. Percentage of sales आप लेंगे जिसे हम कहेंगे that is a bad debt expense, या percentage of receivable लेंगे जिसे कहेंगे allowance for doubtful accounts. Emphasis on the income statement relationship first one, and the emphasis on the balance sheet relationship. पहला वाला किसको affect कर रहा है, that affects the income statement, and other one affects the balance sheet, कि दूसरा किसको affect कर रहा होता है, balance sheet को affect कर रहा होता है। First one, percentage of sales approach, percentage based upon past experiences and anticipate credit policy. परसेंटेज किस हिसाब से रखनी है, परसेंटेज नॉर्मली इस हिसाब से रखनी है कि मैं कहूंगा कि दैट पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुझे तकरीबन इतने अकाउंट रिसीवेबल लास्ट टाइम नहीं रिसीव हुए थे, इतने परसेंट मुझे रिसीव नहीं हुए थे। नाउ वो यू यूज द सेम परसेंटेज फॉर द परसेंटेज ऑफ सेल्स अप्रोच। अचीव प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू, किस तरह होता है, अचीव करता है प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू।
एग्जिस्टिंग बैलेंस इन अलाउंस वाज नॉट कंसिडर्ड, यानी एग्जिस्टिंग बैलेंस को कंसिडर नहीं किया जाता कितना अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में पड़ा है. जस्ट यूजिंग दिस मेथड वी develop certain doubtful account and also achieve the proper matching of cost with the revenue. यानी कि प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू करते हैं कि हाँ जी इतना रिसीवेबल था तो इसमें से हमारे पास इतना क्या निकल आया है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट. सो मे बी इट वुड बी अ बैड डेट एक्सपेंस. Illustration, let's see how there is. Gonzalez company estimated from past experience that about 1% of credit sales become uncollectible. कितने परसेंट सेल? 1% सेल. If net credit sale is 800,000 in 2012, it records bad debt expense as follow. So क्या करेंगे हम उसे? यहाँ पे bad debt expense को रखना है. 8 लाख का जब हम 1% लेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा ये? It's almost, you can say that it's 8,000. You can say that because 8,000 is almost 1%. So what does that is? Bad debt expense is 8,000 and allowance for doubtful account is also being 8,000. Now ये bad debt expense किसमें शो करेगा? इनकम स्टेटमेंट, और इनकम को रिड्यूस करेगा. लेकिन एट द सेम टाइम अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में ये बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा. याद रखिएगा अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में ये बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होता है और बैड डेट एक्सपेंस में ये एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट साइड पे होता है बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज बी डेबिटेड. हाउएवर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट शोज एज एन कॉन्ट्रा लायबिलिटी अकाउंट, सो दैट मींस इट्स ऑन द लायबिलिटी साइड. ठीक है कि हमने डाउट के तहत इसे एज अ लायबिलिटी जनरेट कर दिया है. So bad debt expense debit, allowance for doubtful account credit by 8,000. That is the entry that we pass for this valuations. Then percentage of receivable approach, not matching report receivables at realizable value. किसमें रिपोर्ट करते हैं? At a realizable value. जितने realize हुए अकाउंट रिसीवेबल उतनी ही की बेस पे हम रिसीवेबल को अकाउंट फॉर करते हैं. कंपनीज में अप्लाइज दिस मेथड यूजिंग वन कंपोजिट रेट और एजिंग शेड्यूल यूजिंग डिफरेंट रेट. अब कंपनी के अंदर ऑप्शंस होती हैं कि या तो वो एक कंपोजिट रेट रखे रिसीवेबल का, या कहें कि हाँ 30 डेज वाले के लिए जिसमें 30 डेज का रिसीवेबल टेन्योर है या 30 डेज का जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है उसके लिए डिफरेंट रेट रखे, और जिसका 60 डेज या 90 डेज है उसके लिए ये ही रेट डिफरेंट रखे. बट दे हैव द ऑप्शन कि वो कंपोजिट रेट भी रख सकती है विदाउट सीइंग द एजिंग कि कितने पुराने रिसीवेबल हैं या कितने नए हैं या कितने लेंथी हैं कितने शॉर्टर हैं, उनके लिए डिफरेंट रेट्स भी रख सकती है और एक कंपोजिट रेट भी रखा जा सकता है. यानी देयर इज एन ऑप्शन दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस वे और यू वांट टू गो फॉर दिस वे. नाउ दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर रिसीवेबल बट नॉट फॉर सेल्स. सेल्स के लिए ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल. और याद रखिएगा जब भी सेल्स की बात हो रही है आपको कोई शक हुआ कि हाँ जी इतने रिसीव नहीं होंगे, सबसे पहले कहां जाएंगे? वो बैड डेट एक्सपेंस से डाउटफुल अकाउंट्स, और अगर डाउटफुल अकाउंट से वो रिसीव होने तो हम लोग उसे दोबारा डालेंगे कहां से? डाउटफुल अकाउंट से रिसीवेबल में लेके जाएंगे और वहां पे हम लोग इसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे. नाउ सी देयर वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स दैट इज शोन ओवर देयर. Balance on 31st under 60 days, 60 to 90 days, 90 to 120 days, over 120 days. Now what would be the percentages for all these types of receivables? हर एक देखें डिफरेंट एजिंग के साथ चल रहा है. तो यहाँ पे नीचे देखें तो एजेस के हिसाब से क्या रखा? अंडर 60 इयर्स ओल्ड 460 है तो उसके लिए हमने कितना रखा है परसेंटेज? दैट इज 4%. 60 टू 90 डेज ओल्ड के लिए कितना रखा है? 15% रखा है. 90 टू 120 के लिए 20% एंड ओवर 120 डेज के लिए 25%. So that means each and everything is being managed according to the overall लेटर. यानी जितना ज्यादा लेंथी होगा अकाउंट रिसीवेबल का पीरियड उतने ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे परसेंटेज एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टेबल ज्यादा हो. एंड रिक्वायर्ड बैलेंस इन अलाउंस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. 460,000 मल्टीप्लाई बाय 4% इट्स 18,400. 18,000 into 15% to 2,700. 14,000 into 20% that is 2,800. 55,000 into 25% is 13,750 and that cumulates to the 37,650. यानी टोटल कितना बन रहा है? We have a 37,650. So that what we have calculated from the above thing. That you can say that the name of customers Western Stainless Steel Corporation, Brockway Steel Company, Freeport Sheet and Tube Co, Allegheny Iron Works. बैलेंस देखें 31st को कितना था? इतना 547 था.
आगे देखें अंडर 60 डेज कितने आ रहा है, 460 आ रहा है, उसके 60 to 90 18,000 है, 90 to 120 14,000 है, और ओवर 120 50,000 है। यानी फर्स्ट जो कंडीशन रखी वो दैट इज ऑफ 60 डेज रखी, तो यहाँ पे 60 डेज की पहली एंट्री आ गई। देन देयर इज अ 60 to 90 एंट्री, 90 to 120 एंट्री और ओवर 120 डेज। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ये परसेंटेज किस बेस पे सेट हुई है। याद रखिएगा दीज आर ऑल द एस्टिमेट्स, यार देखें ऊपर लिखा हुआ है एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कर रहे होते हैं कि जो 120 डेज से ऊपर थे वो कितने परसेंट रिसीव हुए थे, जो 60 डेज से ऊपर थे वो कितने रिसीव हुए थे, विद इन 60 डेज वाले वो कितने रिसीव हुए थे। आप इस पे अपना पास्ट एक्सपीरियंस को ही लेके चल रहे होते हैं और उसी की बेस पे डिसीजन कर रहे होते हैं। What entry would Wilson make assuming that no balance existing in allowance for doubtful account? कौन सी एंट्री उसे पास करनी चाहिए? तो यहाँ पे क्या करेगा, bad debt expense debit 37650 and allowance for doubtful account जो हमने पहले पढ़ी थी वो कितनी थी, 337,650। ये हम लोग एंट्री पास करेंगे ताकि हमारे पास ये पता लगे कि हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट कितना पड़ा है, 37,650। नाउ दैट इज नॉट बैड डेट एक्सपेंस। नाउ व्हाट द नेक्स्ट थिंग, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वही चीज है उसका, व्हाट वुड द विल्सन मेक अज्यूमिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 800 बिफोर एडजस्टमेंट। कितना बैलेंस है उसके पास, $800 बिफोर द एडजस्टमेंट बैलेंस। सो उसके लिए एंट्री क्या पास करेगा वो देखिएगा, 37,650 माइनस 800 एंड 36,850 इज योर क्रेडिट वन। Now the question arises why they have minused it? क्यों माइनस करने की जरूरत पेश आ गई, क्या जरूरत पेश आ गई कि इसे माइनस किया जाए और माइनस करके उसके बाद ऐड किया जाए? बिकॉज आपने अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एक स्पेसिफिक सेल के लिए वो कितना रखना है आपने, 37,650। तो ऑलरेडी अगर 800 वहां एडिड है तो आपके पास टोटल कितना होना चाहिए, 36,850। बिकॉज बट द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड what entry would Wilson make assuming the allowance for doubtful account has a credit balance before adjustment? यानी कि हमने बैलेंस कितना मेंटेन करना allowance for doubtful account का, 37650 according to percentage to sale method. If already they have $800, so it means that only the difference would be adjusted so that the allowance for doubtful account has the balance of 37650। तो इसका मतलब है 800 अगर ऑलरेडी है तो उसमें कितने ऐड करने होंगे, 36850 टू मेक इट 37650। दैट इज ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। नाउ यू कैन सी दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट्स को रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 2000, सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट 8 लाख and sales return is of 50,000. Now these are the all accounting of the recording of bad debts. Whereas Candle Company reports the following information before adjustment: allowance to account receivables 160,000, allowance for doubtful account 2,000, sales all on credit 8,000, sales returns 50,000. Instruction: prepare the journal entries to record bad debt expense assuming Candle Company estimated bad debts at up 1% of net of sale and 5% of account receivable. Now we have two methods. दोनों मेथड्स को हमने अभी से ही करना है और जर्नल एंट्री के थ्रू हमें बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं और साथ ही हमने अकाउंट फॉर डाउटफुल अकाउंट्स भी क्रेडिट करते जाना है। Now you can see that. Next one is prepare the journal entry assuming the Sandel estimates the bad debts at a 1% of net of sale। तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए, फर्स्ट वन बैड डेट एक्सपेंस 7,500, कैसे निकलेगी, 1% ऑफ नेट सेल्स, हाउ मच इज द सेल्स इज ऑफ 800,000, लेकिन ये तो ग्रॉस सेल्स थी, नेट सेल्स कैसे निकलेंगी, 800,000 माइनस ओवरऑल 50,000, यानी कि हमने 50,000 माइनस की तो कितने बचे, 750,000, कितने बचे 750,000, और उसमें कितने आए बैड डेट एक्सपेंस, अगर इसका 1% लेंगे तो कितना आएगा 7,500, और नीचे एंट्री क्या आएगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट दैट इज 7,500। दैट इज द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स जो हमारे पास रिसीव होंगे। देन
किस तरह निकला है वो देखें, 800,000 माइनस $50,000 into 1% is the 7,500. Now 1% is settled by the previous estimations. क्या आपको previously पता है कि हाँ यार इतने की ऑलमोस्ट जो है ना वो प्रॉब्लम आएगा कि इतने हमें बैड डेट एक्सपेंस नॉर्मली या ऑलमोस्ट एवरी वे ये हमारे पास जनरेट होंगे. Now 5% of account receivables. How much is the account receivables? That is 160,000. कितने हैं हमारे पास? 160,000 हमारे पास generated account receivables हैं. So that means bad debt expense are 6,000. किस तरह निकले होंगे ये? That means 5% of account receivables. And that is allowance for doubtful account is 6,000. कैसे निकले हैं? 160,000 into 5% minus 2,000 because that is already being in the allowance for doubtful accounts. ये क्या है? Already अभी पढ़े हुए किसमें? allowance for doubtful accounts में already ये पढ़े हुए हैं. So that means 160,000 into 5% minus 2,000 that equals to 6,000. और इस 6,000 को account for किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? Bad debt expenses are 6,000. Allowance for doubtful accounts are 6,000. Now you can see that both methods are clear now. That in this way we are going to manage our allowance for doubtful accounts and bad debt expenses. But there are certain things that are involved. Like कभी जरूरी तो नहीं कि जितने हमने allowance for doubtful account में डालें वो सारे के सारे ही हमें ना रिसीव हो. अनयूजुअल तौर पे या अनएक्सपेक्टेडली कुछ तो रिसीव हो सकता है. और जब वो कुछ तो रिसीव होगा दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग जो अफेक्ट कर सकता है आपकी इन ट्रांजेक्शंस को. तो इफ समटाइम्स बैड डेट्स वुड बी रिसीव तो ये सारी एंट्रीज क्या कर देते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं, यानी उल्टी साइड पे ये मूव करना शुरू कर देती हैं. और जैसे ही से हम लोग रिवर्स मूवमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंट्रीज सारी की सारी चेंज हो जाती हैं. डायरेक्ट राइट ऑफ भी होती हैं बट नॉर्मली इसी मेथड के थ्रू हम लोगों ने राइट ऑफ करने हैं. फर्स्ट वी हैव टू जनरेट अकाउंट रिसीवेबल्स, देन वी यूज एनी मेथड to account for allowance for doubtful account, either percentage to sale or percentage to account receivables. We use any of the method. One more thing that should be kept in mind, in many other studies you can say that sometimes ये इसका नाम रखते हैं that for percentage to sale को कहते हैं ये income approach and percentage to receivable को कहते हैं ये balance sheet approach, because one of the item income या सेल्स को हम लोग कहते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो दैट वाइज इट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट. लेकिन अकाउंट रिसीवेबल्स किसका पार्ट होते हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ ओवरऑल बैलेंस शीट. तो जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट के हिसाब से इसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज बैलेंस शीट अप्रोच. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट परसेंटेज ऑफ सेल इज नोन एज इनकम अप्रोच एंड परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल इज नोन एज बैलेंस शीट अप्रोच. Now there is an illustration. You can see that. Assume that the financial vice president of Brown Furniture authorized a write-off of the $1,000 balance owed by the Randall Corporation on March 1, 2012. The record to entry the write-off is allowance for doubtful account is 1,000 and account receivables is 1,000. What does that mean? क्या हुआ क्या इसमें? गौर से पढ़ें. Assume the financial vice president of Brown Furniture authorized to write off 1,000. क्या कर रहे हैं? ये पक्के नहीं मिल रहा. आपको कंफर्म हो गया कि हाँ जी उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, बट एंड दे हैवंट पेड अस $1,000. जब हमारे पास ये कंफर्मेशन हो गई तो ना इसे डाउटफुल अकाउंट में रखने का फायदा है, ना इसे हमें अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में रखने का फायदा है. सो वी हैव टू make it out from both the accounts. So हम क्या करते हैं इसमें कि हमारे पास बैलेंस किसका होता है? डाउटफुल अकाउंट्स का इन क्रेडिट होता है. तो वी पुट इट ऑन द डेबिट साइड. हम उसे किस में पुट कर देते हैं? डेबिट साइड पे पुट कर देते हैं. और डेबिट साइड पे उसे 1,000 की अमाउंट से पुट करती है. और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स का किस में बैलेंस होता है? दैट इज ऑलवेज बी ऑफ डेबिट. तो हम उसे कम करने के लिए बाय 1,000, क्योंकि 1,000 हमने क्या करना? राइट ऑफ. कि आपको यकीन हो गया, कंफर्म हो गया कि दैट इज नॉट गोइंग टू रिसीव बाय अस. So that means कि वहां पे भी हमें ये रिड्यूस करना है. तो याद रखिएगा जब इसे रिड्यूस करना होगा तो हम कहेंगे दैट इज अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट.
Assume that only on July 1, Randall Co pays the $1,000 amount Brown has written off on March 1. Now the important issue is that जो हमने राइट ऑफ की थी, जो हमने बैड डेट एक्सपेंस में डाल दी थी, वो इत्तेफाक से बॉर्डन ने दोबारा मार्च 1 को कहा कि अच्छा ये 1000 रहते थे ले जाओ. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, अब क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल्स 1000, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 1000. नाउ अगेन जो आखिरी एंट्री की थी जिसमें से दोनों में से निकाल दिया था, अकाउंट रिसीवेबल में से भी निकाल दिया था, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट से भी निकाल दिया था, उस एंट्री को एग्जैक्टली रिवर्स करेंगे ताकि दोनों जगह वो वापस आए, डाउटफुल अकाउंट में भी वापस आए और अकाउंट रिसीवेबल में भी वापस आए, दोनों में वापस आएगा. उसके बाद हम अकाउंट रिसीवेबल में से उसे पे करेंगे, उसके बाद हम इस पे अकाउंट रिसीवेबल में से पे करेंगे. और नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? कैश टू अकाउंट्स रिसीवेबल. नेक्स्ट एंट्री वुड बी कैश टू अकाउंट्स रिसीवेबल, जो हमने एंट्री इसमें करनी है. ठीक है, सो दैट मींस फर्स्ट वी हैव टू रिवर्स द प्रीवियस एंट्री and then we have to reverse we have to pay the give the payment or what we can say we have to post the payment entry like कि हमें कैश रिसीव हो गया है फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स. तो एंट्री क्या होती है? कैश टू अकाउंट्स रिसीवेबल, जो उसमें से हम एंट्री पास करेंगे और जिसमें हमें पता लगेगा कि हाँ जी दिस मच हैज बीन मेड, यानी इतना हमारे पास कैश हमें रिसीव हो गया है. Or that entry would known as the receiving of account receivables that is being shown now, not the bad debt expense account being यानी कि उसे नहीं छेड़ेंगे हम, और ना ही allowance for doubtful accounts, because हमने इसको पहले वापस करना है उसके बाद इसे हमने रिड्यूस करना है ताकि हमारे पास दोनों का इफेक्ट जो है वो आपस में बराबर से आ सके. याद रखिएगा अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज लाइक यू कैन से दैट इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट बट इट्स अ कॉन्ट्रा लायबिलिटी अकाउंट, कि जिसका बिहेवियर क्या होता है एज एन एक्सपेंस ज्यादा होता है लेकिन हम इसे लायबिलिटी रखते हैं. ठीक है ना, तो यू कैन से इट्स कुड बी अ कॉन्ट्रा लायबिलिटी अकाउंट और यू कैन से इट्स लाइक अ लायबिलिटी अकाउंट जिसके अंदर हम सारी लायबिलिटीज अपनी भी हैं वो इसमें शो कर रहे होते हैं और उसी लायबिलिटीज के थ्रू हम इसे मैनेज कर रहे होते हैं. इट्स ऑल्सो अ नॉन कैश आइटम क्योंकि हम ये किसी को दे नहीं रहे होते, ये हम अपने पास एक एस्टिमेटेड अमाउंट अलग कर रहे होते हैं. So that means it's a non-cash account. There is no cash transactions involved in this account. इसमें कोई भी transactions involved नहीं होती हैं. So that's the important thing regarding the valuation of accounts receivable and how they are being made into the allowance for doubtful account and then in a bad debt expense and then into a cash to account receivables and how they can be received. So first bad debt expense and then allowance for doubtful account, and then when we are going to write off, that means allowance for doubtful account debit, account receivables credit, and if unexpectedly that was received, then first reverse the entry. That reverse entry would be account receivables debit, allowance for doubtful account credit with the same amount, and then we pass the entry of cash to accounts receivable. So that's the end of our lecture number 8. What we have studied today is the management of cash. Cash किस तरह मैनेज की जाती है, क्या क्या रीजंस होती हैं, restricted cash क्या होती है, restricted transactions क्या होती हैं. काफी सारी हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल कैश स्टेटमेंट्स भी देखी हैं कि कैश कहाँ से आ रहा है, किधर से मैयर हो रहा है. फिर हम देखा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होती हैं, कैश रिसीट्स क्या होते हैं, डिस्पर्समेंट क्या होते हैं. अच्छा वन मोर थिंग याद रखिएगा, जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कैश रिसीट्स एंड कैश डिस्पर्समेंट्स, वो हमेशा यूज किए जाते हैं फॉर कैश बजटिंग टेक्निक, क्योंकि हमने कैश का भी बजट बनाना होता है. कैपिटल बजट तो होता ही है बट देयर इज ऑल्सो अ टर्म दैट इज नोन एज कैश बजट, तो वो उसके बनाने के लिए भी यही चीजें यूज होती हैं और उन्हीं के थ्रू हमने कहा जी देयर मस्ट बी सम इंटरनल कंट्रोल. देन वी हैव स्टार्ट द रिकग्नाइजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स. अकाउंट रिसीवेबल्स कैसे रिकग्नाइज की जाए, उसमें इससे पहले हमने देखा था कि सेल्स रिटर्न्स कैसे मैनेज किए जाएं. उसमें दो मेथड पढ़े थे, एक ग्रॉस मेथड था, एक नेट मेथड था. ग्रॉस मेथड के अंदर हम लोग उसमें सेल्स डिस्काउंट को भी सेपरेटली शो कर रहे थे, बट नेट मेथड में हम सेल्स डिस्काउंट को सेपरेटली शो नहीं करते थे. हाँ, इन एनी केस सेल्स का जो रिटर्न था या सेल्स का जो डिस्काउंट होता था उसको हम लोग अगर नहीं मिलता, नहीं वो अवेल करता था और मिस हो जाता था तो उसे हम कहते थे सर्विस रेवेन्यू फॉरफिटेड. बट लेकिन ग्रॉस मेथड में इसे हम
अलग से शो करते थे कि हाँ दैट इज द थिंग कि हमें ये अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट देना पड़ेगा, और वहां पे हम इक्वल के हिसाब से क्रेडिट भी कर दिया करते थे. देन वी हैव स्टडीड द अकाउंट रिसीवेबल्स इन विच वी हैव सीन हाउ द बैड डेट्स एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड, and then how the allowance for doubtful account will be maintained, and then how the cash and account receivables will be managed. So all these things requires for the management and recognition of accounts receivables. We have done different review questions. We have also done certain examples or activities related to account receivables. So that's the end of the lecture number 8. Allah Hafiz.